Hello everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we're going to make this beautiful bow. आज की ट्यूटोरियल में हमें प्यारा सा बो बनाने वाले हैं. इसे बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं. रबर बैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्लिप लगा के पीछे क्लिप अटैच करके क्लिप की तरह यूज़ कर सकते हैं, की रिंग बना सकते हैं की रिंग लगा के. तो आई होप आपको अच्छा लगेगा. सो लेट्स बिगिन. सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ स्लिप नॉट. सबसे पहले हमने एक स्लिप नॉट बनानी है एंड नाउ वी हैव टू चेन 96. तो अभी हम 96 चेन्स बनानी है हमने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 92 93 94 95 and 96. So here I have made 96 chains. मैंने 96 chains बना ली हैं. Now we have to work in the second chain from the hook. तो अब हम second chain जो है हमारी hook से उसमें काम करेंगे. This is the first and this is the second. So we'll go into the second chain and we'll start working from here. So let's go into the second chain from the hook and make a single crochet stitch. तो जो second chain है hook से उसमें single crochet stitch बनाएंगे. Go in the second chain from the hook, yarn over, pull up a loop. You'll have 2 loops on your needle. Yarn over and pull through both of them. So here we have done a single crochet stitch. One single crochet stitch into the next chain, 2, this is the second single crochet stitch, one single crochet stitch into the next, 3, one single crochet stitch into the next, 4. तो इस तरीके से हमने टोटल 10 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करने हैं. वी नीड अ टोटल ऑफ 10 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. वन इन द नेक्स्ट, 5 6 7 8 9 and 10. So here we have done 10 single crochet stitches in the 10 chains. तो जो 10 chains थी उसमें हमने 10 single crochet stitches किए हैं. Now in the next 5 chains we need to do slip stitches. तो next 5 chains में हम slip stitch करेंगे. Go in, yarn over, pull up a loop and pull it through the loop on the needle. 1, next वाली में फिर से slip stitch करेंगे. 2, in the next chain again slip stitch. 3, in the next again 4, and in the next 5. So first we did 10 single crochet stitches. Now we have done 5 slip stitches. तो पहले हमने 10 single crochet stitches किए, फिर हमने 5 slip stitches किए. Now we need to do 30 single crochet stitches. अब हमें 30 single crochet stitches करने हैं. 1 2 3 4 5 6 23 24 25 26 27 28 29 and 30. तो ये हमने 30 single crochet stitches कर लिए. We have done 30 single crochet stitches. Now again in the next 5 chains we need to do slip stitches. फिर से next 5 chains में हम slip stitch करेंगे. So go in, slip stitch. 1 2 3 4 and 5. Now again in the next 30 chains we need to do single crochet stitches. Next 30 chains में हम single crochet stitches करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28
29 and 30. So here again we did 30 single crochet stitches. फिर से हमने 30 single crochet stitches कर ली. Now in the next 5 chains again we need to do slip stitches. फिर से next 5 chains में हम slip stitch करेंगे. 1 2 3 4 and 5. Now we are left with the last 10 chains. हमारे पास last 10 chains बची हैं. हम इसमें अब single crochet stitch करेंगे. Now we need to do single crochet stitches in the last 10 chains that we have. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the last one. 10. So here we have completed row number 1. Row number 1 हमारा complete हो गया है. Now we'll start with row number 2. Row number 2 start करेंगे. Chain 1 and turn your work. Chain 1 करके अपना work turn करेंगे. And we need to do the exact same that we did for row number 1. तो जो हमने row number 1 में किया था वही same हम repeat करेंगे, जो कि है 10 single crochet stitches, फिर 5 slip stitches, then again 30 single crochet stitches, 5 slip stitches, 30 single crochet stitches, 5 slip stitches, and then again last 10 single crochet stitches. So this row that we did, we need to repeat this around 5 to 6 times depending on the thickness that you want about your bow. If you want it thicker, you have to increase the number of rows. If you want it thinner, you can decrease the number of rows. तो आपको जितना चौड़ा अपना बो चाहिए उतनी बार आपने इस चीज़ को रिपीट करना है. तो मैं 5 से 6 बार इस चीज़ को रिपीट करूँगी. मैं एक और बार आपको दिखाऊँगी और फिर मैं इसको पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसा लगता है. तो मैं आपको बता देती हूँ. नेक्स्ट रो नंबर 2 वो सेम वही है जो पैटर्न हमने रो नंबर 1 में यूज़ किया था. सो सेकेंड रो के लिए फिर से हम स्टार्ट करेंगे 10 सिंगल क्रोशे स्टिचेस से, लेकिन हम सिर्फ बैक लूप्स में काम करेंगे अब. सो वी हैव टू ओनली वर्क इन द बैक लूप. सो दिस इज़ द फ्रंट लूप दैट्स फेसिंग यू एंड द लूप दैट्स फेसिंग द अदर साइड इज़ द बैक लूप. तो हम सिर्फ बैक लूप्स में अब काम करेंगे. सो विल गो इन, मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट. तो हमें 10 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब हमें 5 स्लिप स्टिचेस करने हैं. नाउ वी हैव टू डू 5 स्लिप स्टिचेस. 1 2 3 4 and 5. And make sure when you're doing the slip stitches you're not doing them too tight, otherwise it will be very difficult for you to work in them. तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप स्लिप स्टिचेस कर रहे हो तो लूज हैंड से करना, उसको बहुत टाइट नहीं करना, नहीं तो आपसे उसमें काम नहीं होगा. Now after doing 5 slip stitches we need to do 30 single crochet stitches. अब हमें 30 single crochet stitches करने हैं. And remember to work only in the back loops. हम सिर्फ back loops में काम करेंगे. 2 3 4 5 6 and 30. So I have done 30 single crochet stitches. Now we need to do 5 slip stitches. मैंने 30 single crochet stitches कर ली है. अब हम 5 slip stitches करेंगे. 1 2 3
4 and 5. Now again we need to do 30 single crochet stitches. अब हमें फिर से 30 single crochet stitches करनी है. 1 2 3 4 5 6 7 and 30. तो इधर मैंने 30 सिंगल क्रोशे स्टिचेस कर लिए हैं. नाउ 5 स्लिप स्टिचेस अगेन. फिर से हमें 5 स्लिप स्टिच करने हैं. 1 2 3 4 and 5. अब लास्ट 10 सिंगल क्रोशे स्टिचेस करने हैं हमने और हमारा रो 2 भी कंप्लीट हो जाएगा. So we need to do 10 single crochet stitches now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So this completes our row number 2. Row number 2 हमारा complete हो गया है. Chain 1 and turn your work and repeat the same pattern until you have the desired width of your bow. तो आप इस रो को बार बार आपने रिपीट करना है जब तक आप उतना चौड़ा ना बन जाए जितना चौड़ा आपको अपना बो चाहिए. तो मैं इसको और मेरे ख्याल से 3 से 4 रोज़ और रिपीट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है. मैं इसी सेम पैटर्न को रिपीट करूँगी जो रो नंबर 1 का है और जो सेम हमने रो नंबर 2 के लिए यूज़ किया है. सो यू हैव टू रिपीट द सेम पैटर्न एंड रिपीट दिस एज मेनी टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ योर बो. आई विल रिपीट दिस 3 to 4 more times and then I'll show you how it looks. तो मैं 3 से 4 रोज़ और कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है. तो ये देखिए मैंने काफ़ी रोज़ कर दिए हैं. ये देखिए. So I've completed many rows. I ended up doing a total of 1 2 3 4 5 6 7 8. I have done 8 to 9 rows I have completed. You can even add on more rows if you want it to be little thicker. आपको अगर thick चाहिए तो आप थोड़े से और rows add कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना सही लग रहा है. अब हमें इसे assemble करना है. Now we need to assemble this. So for that I'll chain 1 and fasten off first. तो पहले मैं chain 1 करके fasten off कर दूँगी. And I'm really sorry about this sound. There's some construction going on. So chain 1 and fasten off. तो chain 1 करके हम fasten off कर लेंगे. And now we need to make this into a bow. तो इसको हमें अब bow के shape में करना है. So now you can see these slip stitches in between. तो ये slip stitches आपको दिख रहे हैं बीच में. तो ये जो 3 जगहों पे स्लिप स्टिचेस हैं हमें इनको एक ही जगह पे लाना है. तो इस सेंटर में ही लाना है हमने. तो ये देखिए ये हमने रखा. ये सेंटर पोर्शन है हमारा. दिस इज़ द सेंटर पार्ट वेयर वी हैव दी स्लिप स्टिचेस एंड देन वी हैव स्लिप स्टिचेस ओवर हियर एट दिस एंड एंड एट द अदर एंड. सो विल ब्रिंग ऑल द स्लिप स्टिचेस टुगेदर. तो ये स्लिप स्टिचेस हम यहाँ पे ले आए और ये वाली स्लिप स्टिच को हम उसके ऊपर ले आए. सो वी हैव प्लेस्ड ऑल द स्लिप स्टिचेस टुगेदर एंड नाउ वील टाई देम यूजिंग द यार्न. तो यार्न यूज़ करके हम इसे टाई कर देंगे. सो आई विल टेक अ पीस ऑफ यार्न एंड आई विल होल्ड इट एंड आई विल रैप द यार्न अराउंड इट इन द सेंटर. तो मैं सेंटर में इसे टाइटली रैप कर दूँगी. तो इसे हम अच्छे से रैप कर लेंगे और ये वाला पीस मैंने साइड पे ही रखा है बिकॉज इसी से मैं नॉट बनाऊंगी उसका. सो जस्ट रैप इट अराउंड. इस तरीके से हम इसे रैप कर देंगे एंड वंस वी आर डन, एक बार हमारा ये हो जाएगा तो हम इसे नॉट बांध के सिक्योर कर लेंगे. सो नाउ आई जस्ट कट द yarn फ्रॉम हियर एंड टाई कपल ऑफ नॉट्स यूजिंग बोथ दी yarn ends. तो दोनों yarn ends को यूज़ करके हम यहाँ पे नॉट्स बना लेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए और खुले नहीं. और फिर इसे हम वीव इन कर देंगे. तो जो भी yarn tails होंगी इसको वीव इन कर देना है. सो विल वीव इन दीज yarn tails. सो आई जस्ट गो इन
एंड वीव इन द yarn tails. तो yarn tails को हम वीव इन कर देंगे. एंड वील कट द एक्स्ट्रा yarn फ्रॉम here. तो एक्स्ट्रा को कट कर देंगे. एंड वी हैव दीज 2 yarn tails एज वेल. तो नीचे भी yarn tails है हमारी, इसे भी हम स्टिचेस के बीच में वीव इन कर देंगे. यू कैन ऑल्सो यूज़ अ टेपेस्ट्री नीडल टू वीव इन योर yarn ends. तो आप टेपेस्ट्री नीडल की मदद से भी कर सकते हो, या इस तरीके से क्रोशे हुक से भी कर सकते हैं. और जो एक्स्ट्रा yarn होगी उसे हम कट कर देंगे. तो ये जो मैंने बो बनाया है ये बड़ा है थोड़ा. आपको इसी तरीके से मैं छोटा जो बो है उसका भी ट्यूटोरियल बहुत जल्द लेकर आऊँगी. चाहिए तो नेक्स्ट ही मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँगी छोटे बो का. ये बड़ा है काफ़ी. आपको अगर बड़ा चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हो, और अगर आपको छोटा बनाना है तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी मैं उसमें छोटा बो भी अपलोड कर दूँगी, ताकि अगर आपको छोटा बनाना है तो आप छोटा बना सकते हो, और अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप यही वाले ट्यूटोरियल को देख के बड़ा भी बना सकते हो. सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल विल बी अबाउट द स्मॉलर बो. तो छोटा वाला बो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं अपलोड कर दूँगी. तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है. नाउ वी हैव टू जस्ट स्ट्रेटन इट अप. इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे, और ये देखिए इस तरीके से बन के हमारा रेडी हो गया. सो हियर वी हैव आवर बो. यू कैन ऐड अ की रिंग, और यू कैन ऐड दिस बो टू योर हेयर क्लिप, और यू कैन ऐड अ रबर बैंड एट द बैक एंड यूज़ इट एज अ हेयर एक्सेसरी. तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. इसको की चेन बना सकते हो. क्लिप पीछे लगा के आप इसको क्लिप की तरह यूज़ कर सकते हो. आप पीछे अगर रबर बैंड लगाओगे तो आप रबर बैंड की तरह यूज़ कर सकते हो. तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये. यहाँ पे आप एक पर्ल भी लगा सकते हो अगर आपको चाहिए तो. आप इसे बहुत तरीके से और इन्हांस कर सकते हो. आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.